السلام علیکم دوستو، اٹس فار یو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم کمپنی سے ریلیٹڈ کچھ معلومات آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ کمپنی اور یہ اپنا کاروبار کیسے کرتا ہے۔ تو بزنس سیکٹر میں کمپنی کو جوائنٹ اسٹاک کمپنی کہتے ہیں، جسے اردو میں مشترکہ سرمایہ کی انجمن کہا جاتا ہے۔ تو کمپنی سے مراد کاروبار کی ایک ایسی قسم ہے جس میں بہت سے افراد نفع کمانے کے غرض سے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور بطور حصہ دار اس میں اپنی پونجی جمع کرا دیتے ہیں۔ اس طرح جو سرمایہ حاصل ہوتا ہے اس سے کوئی وسیع کاروبار کیا جاتا ہے۔ کاروبار سے جو منافع حاصل ہوتا ہے اس میں تمام حصہ دار شریک ہوتے ہیں، اور اسی طرح اگر نقصان ہوتا ہے تو پھر بھی حصہ دار ان میں ایک خاص حد تک ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو کمپنی کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ماہرین مضمون کا نقطہ نظر جاننا ہوگا۔ تو ایک ماہر مضمون جیمز اسٹیفن کے مطابق مشترکہ سرمایہ کی کمپنی بے شمار افراد کی جماعت ہے جو مشترکہ سرمایہ میں زر یا زر کی قدر لاتے ہیں اور اس کو کسی تجارت یا کاروبار میں لگاتے ہیں اور وہ نفع و نقصان آپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور ماہر مضمون لارڈ لیلنے کے مطابق مشترکہ سرمایہ کی کمپنی افراد کی ایک ایسی تنظیم ہے جو کہ رقم والی چیز کو مشترک مقصد کے لیے مشترک سرمایہ میں لگاتے ہیں۔ پاکستان کمپنی آرڈیننس 1984 کے مطابق کمپنی کی تعریف کچھ یہ ہے کہ مشترکہ سرمایہ کی انجمن ایک ایسی ایسوسی ایشن ہے جس میں بہت سے افراد نفع کمانے کے غرض سے کوئی کام کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس میں اپنی رقم حصوں کی شکل میں لگاتے ہیں۔ یہ حصے خریدے، بیچے اور منتقل بھی کیے جا سکتے ہیں۔ ان حصوں کو انگریزی میں شیئرز کہتے ہیں۔ بہرحال کمپنی کی آسان تعریف یہ ہے کہ کمپنی ان افراد پر مشتمل ایک انجمن ہے جو اس بنیاد پر کاروبار میں سرمایہ لگاتے ہیں کہ وہ نفع و نقصان میں خریدے ہوئے حصے سے سرمایہ کی حد تک شریک ہوں گے۔ جو افراد کاروبار کے لیے رقم فراہم کرتے ہیں انہیں حصہ دار یا شیئر ہولڈرز کہتے ہیں۔ جو کل رقم کاروبار کے لیے حاصل ہوتی ہے وہ کمپنی کا سرمایہ کہلاتی ہے۔ سرمایہ کو چھوٹے چھوٹے یونٹوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جنہیں حصص یعنی کہ شیئرز کہتے ہیں۔ ہر حصہ ایک خاص مالیت کا ہوتا ہے جو مختلف افراد میں بغیر کسی رکاوٹ کے منتقل ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہ تو ہوئی کمپنی کی تعریف۔ اب ہم کمپنی کی خصوصیات جانیں گے کہ ان کے خصوصیات یا فیچرز کیا ہے۔ تو پہلا فیچر ہے فارمیشن یعنی کہ تشکیل۔ تو کمپنی کی تشکیل پاکستان کمپنی آرڈیننس 1984 کے تحت ہوتی ہے۔ اس کی تشکیل کے ایک طویل اور پیچیدہ عمل ہے۔ کمپنی کو روزمرہ کے امور سر انجام دینے کے لیے قدم قدم پر قانونی دفعات کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ دوسرا فیچر ہے سیپریٹ لیگل اینٹیٹی یعنی کہ جداگانہ حیثیت۔ تو کمپنی میں حصہ داروں کی جداگانہ حیثیت ہوتی ہے۔ اس کی حیثیت ایک مصنوعی یا فرضی فرد کی ہوتی ہے۔ یہ اپنے نام سے معاہدوں میں ایک فرد کی طرح شریک ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر کسی نے کمپنی سے کوئی رقم لینی ہو تو کمپنی کے نام دعویٰ کر سکتا ہے لیکن کسی حصہ دار کے نام پر نہیں۔ ہر شخص کو صرف کمپنی کے نام کا پتہ ہوتا ہے، وہ حصہ داروں کو نہیں جانتا۔ تیسرا فیچر ہے لمیٹڈ لائبلٹی یعنی کہ محدود ذمہ داری۔ تو کمپنی کے حصہ داروں کی ذمہ داری محدود ہوتی ہے۔ ان کی ذمہ داری صرف اتنی رقم تک محدود ہوتی ہے جتنی کہ انہوں نے شیئرز خریدے ہو۔ اسی طرح ضمانتی ذمہ داری کی کمپنیوں میں حصہ داروں کی ذمہ داری صرف اس رقم تک محدود ہوتی ہے جس رقم کی انہوں نے ضمانت رکھی ہو۔ چوتھا فیچر ہے ٹرانسفریبلٹی آف شیئرز یعنی کہ شیئرز کی منتقلی۔ عوامی یا پبلک لمیٹڈ کمپنی کے حصے اسٹاک ایکسچینج سے آزادانہ خریدے اور بیچے جا سکتا ہے۔ اسی طرح عوامی یا پبلک لمیٹڈ کمپنی کا کوئی بھی حصہ دار جب بھی چاہے اپنے حصے فروخت کر کے وہ سرمایہ واپس حاصل کر سکتا ہے، جبکہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے شیئرز آزادانہ طور پر منتقل نہیں ہو سکتے۔ 5 ایشوئنس آف شیئرز یعنی کہ شیئرز کی اجراء۔ تو عوامی یا پبلک لمیٹڈ کمپنی کے شیئرز عوام کو جاری کیے جا سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے کمپنی پراسپیکٹس جاری کرتی ہے، جبکہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اپنے شیئرز عوام کو جاری نہیں کر سکتے۔ 6 نمبر آف شیئر ہولڈرز یعنی کہ حصہ داروں کی تعداد۔ پبلک لمیٹڈ کمپنی میں حصہ داروں کی کم از کم تعداد 7 ہے اور زیادہ سے زیادہ حصہ داروں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں۔ اس کے برعکس پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں کم از کم حصہ داروں کی تعداد 2 اور زیادہ سے زیادہ 50 ہے، جبکہ سنگل ممبر کمپنی میں حصہ دار 1 ہوتا ہے۔ نمبر 7 مینجمنٹ آف جوائنٹ اسٹاک کمپنی یعنی کہ کمپنی کا انتظام۔ تو کمپنی کے کاروبار کا انتظام ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سپرد ہوتا ہے۔ کمپنی کی حکمت عملی، طریقہ کار اور پروگرام واضح کرنے کی ذمہ داری اس بورڈ پر عائد ہوتی ہے۔ ڈائریکٹرز کا انتخاب 3 سال کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 8 لانگ لائف یعنی کہ طویل عمر۔ کمپنی کی اپنے حصہ داروں سے جداگانہ حیثیت ہوتی ہے۔ کسی حصہ دار کے مر جانے یا پاگل ہونے یا دیوالیہ ہونے سے کمپنی کی زندگی ختم نہیں ہوتی، اس لیے کمپنی کی عمر طویل ہوتی ہے۔ نمبر 9 آبجیکٹیوز یعنی کہ مقاصد۔ کمپنی کے اعراض و مقاصد کمپنی کے آئین میں درج ہوتے ہیں۔ کمپنی انہی مقاصد کے حصول کے لیے کام کرتی ہے۔ نمبر ڈیموکریٹک مینرز یعنی کہ جمہوری طرز عمل۔ کمپنی کا نظم و نسق جمہوری طرز پر چلایا جاتا ہے۔ کاروباری امور سے متعلق تمام فیصلے کثرت رائے سے ہوتے ہیں۔ نمبر 11 obtaining لون یعنی کہ قرضے کا حصول۔ کمپنی بوقت ضرورت اپنے نام پر قرض حاصل کر سکتی ہے اور اس کی ادائیگی بھی کمپنی ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔
नंबर 12 डिवीजन ऑफ प्रॉफिट यानी कि नफ़े की तकसीम। जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है कि कंपनी को कायम करने का मकसद नफ़ा कमाना होता है। कंपनी के कारोबार से हासिल शुदा तमाम नफ़ा हिस्सेदारों में तकसीम नहीं किया जाता, बल्कि इसका कुछ हिस्सा कंपनी के रिजर्व फंड में जमा कर दिया जाता है ताकि नगेहानी सूरत पर काम आ सके। तो दोस्तों, ये तो हुई कंपनी की खसूसियात। अब हम कंपनी के अक़साम जानेंगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के कितने अक़साम हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के बहुत से अक़साम हैं जिसको हम यहाँ बतरतीब जानेंगे। तो कंपनी का पहला किस्म है चार्टर्ड कंपनी, जिसे उर्दू में मंशूरी कंपनी कहते हैं। इस किस्म की कंपनियां बरतानिया और यूरोप के दूसरे ममालिक में कंपनी एक्ट पास होने से पहले कायम की जाती थी। ये कंपनियां शाही फरमान के जरिए कायम की जाती थी। चार्टर्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड, चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी मंशूरी कंपनी की अहम मिसालें हैं। कंपनी एक्ट पास होने के बाद मंशूरी कंपनियों को दोबारा इस कानून के तहत तश्कील दिया गया। आजकल मंशूरी कंपनियों की तादाद बहुत ही कम है, क्योंकि अब कंपनियों को कायम करने के लिए बाकायदा एक कानून मौजूद होता है। चार्टर्ड कंपनी की खसूसियात यह है कि चार्टर्ड कंपनी की सूरत में हिस्सेदार कंपनी की तरफ से कर्ज के लिए किए गए माहिदों के पाबंद नहीं होते। इस किस्म की कंपनियों के नाम के बाद लिमिटेड का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये कंपनियां शाही फरमान से वजूद में आती हैं। ऐसी कंपनियों को वसीतर एहतियात हासिल होते हैं और कवायद व ज़वाबित के इन मुताबिक इनका कारोबार चलाया जाता है। इस तरह की कंपनियों के सरबराह शाही फरमान के जरिए मुकर्रर किए जाते हैं, जिन्हें मुकम्मल तौर पर एहतियात हासिल होते हैं। ऐसी कंपनियों का कारोबार शाही फरमान के जरिए मुअत्तल किया जा सकता है। कंपनी का दूसरा किस्म है स्टैट्यूटरी कंपनी, जिसे उर्दू में आईनी कंपनी कहते हैं। इस किस्म की कंपनियां पार्लियामेंट के एक खास कानून या सदर मुमलिकत के किसी खास आर्डिनेंस के तहत कायम की जाती है। मिसाल के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, सनती तरक्याती बैंक ऑफ पाकिस्तान, ज़ारी तरक्याती बैंक ऑफ पाकिस्तान और नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन वगैरह। पार्लियामेंट के खास कानून या सदर मुमलिकत के हुक्म से इस किस्म की कंपनी को इजारादाराना इख्तियारात हासिल होते हैं। आईनी कंपनी की खसूसियात कुछ ये हैं कि ये कंपनियां पार्लियामेंट के एक खास कानून या सदर मुमलिकत के हुक्म के तहत कायम की जाती है। ये कंपनियां समाजी बहबूद के हामिल कारोबार को चलाने के लिए कायम की जाती है। इन कंपनियों का निज़ाम कंपनी एकड़ के ताबे नहीं होता। इन कंपनियों को हुकूमत का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। ऐसी कंपनियों के हिस्सेदार अपने हिस्से की मालिकियत तक ही नुकसान के जिम्मेदार होते हैं। ऐसी कंपनियों को अपने कारोबार में मुकम्मल इजारादारी हासिल होती है। इस तरह की कंपनियां कौम के इज्तिमाई मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम की जाती है। कंपनी का तीसरा किस्म है रजिस्टर्ड कंपनी। तो जो कंपनी किसी ऑर्डिनेंस के तहत तश्कील दी जाती है वो रजिस्टर्ड कंपनी कहलाती है। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनियां कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत कायम की जाती है। रजिस्टर्ड कंपनियां बहुत मशहूर है। बड़े बड़े तजारती इदारे इस तरह की कंपनियां होती है। रजिस्टर्ड कंपनियां की मजीद दो अक़साम है। एक अनलिमिटेड कंपनी, जैसे उर्दू में गैर महदूद ज़िम्मेदारी की कंपनी कहा जाता है, और एक लिमिटेड कंपनी, जैसे उर्दू में महदूद ज़िम्मेदारी की कंपनी कहा जाता है। तो गैर महदूद ज़िम्मेदारी की कंपनी के हिस्सेदारों की ज़िम्मेदारी गैर महदूद होती है। गैर महदूद ज़िम्मेदारी की कंपनी के हर हिस्सेदार की ज़िम्मेदारी इस तरह गैर महदूद होती है जिस तरह शराकती कारोबार में हर हिस्सेदार की ज़िम्मेदारी गैर महदूद होती है। आमतौर पर महदूद ज़िम्मेदारी की कंपनियों को कायम नहीं किया जाता, क्योंकि कंपनी के क़याम का बुनियादी मकसद हिस्सेदारों की ज़िम्मेदारी को महदूद करने की सहूलत फराहम करना है। गैर महदूद ज़िम्मेदारी की कंपनी की खसूसियात यह है कि इन कंपनियों को कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत रजिस्टर किया जाता है। इनका इंतजाम चलाने के लिए नाज़िमों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। इस तरह की कंपनियों के शेयर्स आज़ादाना तौर पर मुंतकिल हो सकते हैं। इस कंपनी का हिस्सेदार कंपनी से अलहदा होने के 1 साल बाद कंपनी के किसी कर्जे की अदायगी का जिम्मेदार नहीं होता। रजिस्टर्ड कंपनी का दूसरा किस्म है लिमिटेड कंपनी, यानी कि महदूद ज़िम्मेदारी की कंपनी। तो इस किस्म की कंपनी में हिस्सेदारों की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी रकम तक महदूद होती है जितनी रकम के उन्होंने शेयर्स खरीदे हो। नुकसान की सूरत में वो इससे जायद रकम अदा करने के जिम्मेदार नहीं होते। लिमिटेड कंपनियों को मजीद 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और दूसरा पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 2 अक़साम है, सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और मल्टी मेंबर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दुनिया के कुछ तरक्की याफ्ता ममालिक मसलन अमेरिका और बरतानिया में सिंगल मेंबर कंपनी के तस्वुर को कामयाबी से बताया जा रहा है। इन ममालिक के तजर्बात का जायजा लेने के बाद सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक कानूनी ज़ाब्ते के तहत सिंगल मेंबर कंपनी का नजरिया मुतारिफ कराया। इस नजरिए को मुतारिफ कराने का मकसद वाहिद अजर को ये मौका फराहम करना है कि वो महदूद ज़िम्मेदारी के फवायद हासिल कर सके। पाकिस्तान कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 में जो तरमीम की गई है, इनमें से एक पाकिस्तान कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के सेक्शन 15 में की गई तरमीम की रूह से प्राइवेट कंपनी के 2 अरकान की बजाय एक रुकन भी सिंगल मेंबर कंपनी कायम कर सकता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 दिसंबर 2003 को सिंगल मेंबर कंपनीज रूल्स 2003 जारी किए हैं, जो सिंगल मेंबर कंपनी तश्कील देने के रहनुमा उसूल है। तरक्की पजीर ममालिक और बर-ए-आज़म एशिया में पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसने सिंगल मेंबर कंपनी का मुनफरिद नजरिया अपनाया। सिंगल मेंबर
मेंबर कंपनी का रुकन सिर्फ एक शख्स होता है। सिंगल मेंबर कंपनी की जिम्मेदारी महदूद होती है। इस कंपनी का नाज़िम सिर्फ एक होता है। इस कंपनी के मेंबर की कंपनी से अलहदा और जुदागाना हैसियत होती है। इसकी हैसियत एक फर्जी फर्द की होती है। ये कंपनी अपने नाम से माहिदों में एक फर्द की हैसियत से शरीक हो सकती है। सिंगल मेंबर कंपनी को अपने नाम के साथ सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिखना पड़ता है। इस कंपनी की तश्कील बाकायदा एक कानून और ज़ाब्ते के तहत अमल में आती है। सिंगल मेंबर कंपनी की उम्र तवील होती है। मालिक की वफात के बाद इसके कानूनी वारिसा कारोबार जारी रख सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का दूसरा किस्म है मल्टी मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो मल्टी मेंबर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से मुराद ऐसी कंपनियां हैं जिसके कम अज कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50 हिस्सेदार हों। ये कंपनी अवाम को शेयर्स जारी नहीं कर सकती। इस कंपनी के शेयर्स दूसरे अफराद को मुंतकिल नहीं हो सकते। मल्टी मेंबर्स कंपनी की खसूसियात कुछ ये है कि मल्टी मेंबर्स प्राइवेट कंपनीज के हिस्से नाकाबिल इंतकाल होते हैं। इसमें कम अज कम हिस्सेदार 2 और ज्यादा से ज्यादा 50 होते हैं। इस तादाद में कंपनी के मुलाजिमीन शामिल नहीं होते। इसके शेयर आम अफराद को फरोख्त नहीं किए जा सकते। इस कंपनी के लिए प्रस्पेक्ट जारी करना जरूरी नहीं होता और न ही प्रस्पेक्ट की बजाय और कोई दस्तावेज जारी करना जरूरी है। ऐसी कंपनी को अपने नाम के साथ प्राइवेट LTD यानी कि प्राइवेट लिमिटेड के अल्फाज लगाना जरूरी होती है। ऐसी कंपनी के लिए आईनी इजलास बुलाना जरूरी नहीं होती। ऐसी कंपनियों की हिस्सेदारों की जिम्मेदारी महदूद होती है। इस कंपनी के कम अज कम 2 प्रमोटर्स होते हैं और मल्टी मेंबर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑडिट लाजमी नहीं होता। बहरहाल दोस्तों, लिमिटेड कंपनी का दूसरा किस्म है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स अवाम को फरोख्त कर सकती है। इसके शेयर्स आजादाना मुंतकिल भी हो सकते हैं। ये कंपनी कर्ज हासिल करने के लिए टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट वगैरह भी जारी कर सकती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कुछ खसूसियात यह है कि इनमें मेंबरान की तादाद कम अज कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा पर कोई पाबंदी नहीं होती। इस तरह की कंपनियों में हिस्से आजादाना तौर पर मुंतकिल हो सकते हैं। इसके हिस्से आम अफराद को फरोख्त के लिए पेश किए जाते हैं। इसके डायरेक्टरों की तादाद 7 से कम नहीं हो सकती। इस कंपनी को कारोबार शुरू करने से कबूल आगाज़कार का सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ता है। कंपनी के नाम के साथ महदूद यानी कि लिमिटेड जरूर लिखना पड़ता है। इस तरह की कंपनियों के हिसाबात का ऑडिट कराना लाजमी होता है। तो दोस्तों, ये तो हुई कंपनी और इनके अक़साम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसके अलावा ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा और अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो इसको कमेंट लिस्ट में ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको पहुंच सके।